Yes, sir. ओके, ठीक है। So question number 30 है with the help of a label diagram describe briefly the underlying principle and working of a step up transformer. ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर के पार्ट्स प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, अल्टरनेटिंग सप्लाई, ठीक है, और लोड रेजिस्टर, रेसिस्टर, सॉफ्ट किसके? सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ दी लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. So this is the primary coil and we are drawing a step up transformer. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी वाली वाइंडिंग्स अपने ज़्यादा टर्न्स होंगे? सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स होंगे, करेक्ट. So this is the secondary winding having more turns. So this is S1, S2. This is the alternating supply applied on the primary. Let's call it V is equal to V naught sine omega t. And on the other side, let us connect a resistor RL. ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है हमेशा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पे, तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ही यहाँ पर इंडक्टिव कपलिंग की वजह से पहुँच जाती है. तो ये जो आपको मिलेगा आउटपुट, ये भी कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग ही होगा, ये ऑल्टरनेटिंग आउटपुट मिल जाएगा आपको यहाँ पर. और अगर हम बात करते हैं ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. सो दिस इज लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. Laminated soft iron core, and this is the primary coil and this is the secondary coil, and this RL is the load resistor. फिगर में हमने बनाने के लिए बस बना दिया लोड रेसिस्टर, बाकी इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी अ कैपेसिटर और इंडक्टर or combination of resistor, capacitor or inductor. So it could be anything. For simplicity, we have just taken a load resistor here. So this is the diagram, and then talking about its principle. तो इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन. So ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट ऑल्टरनेटिंग है कि डायरेक्ट है? ऑल्टरनेटिंग है. और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर भी एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है. सो वी कैन से कि व्हेनेवर अ टाइम वेरिंग करंट, whenever a time varying current flows in primary coil, an alternating EMF is induced in the secondary coil. Whenever a time varying current flows in primary coil, an alternating EMF is induced in the secondary coil. यहाँ पर what is NP? number of turns in primary coil. NS is number of turns in secondary coil. ये जो सॉफ्ट आयरन है, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पूरे के पूरे अपने कोर के अंदर फैला देता है. तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड, दिस इज द लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यू कैन राइट phi b somewhere like this, phi b. So what is phi b? Phi b is the magnetic flux linked with each turn of primary and secondary. Phi b is the magnetic flux linked with each turn of primary and secondary. ये ट्रांसफार्मर किस चैप्टर का पार्ट है? alternating current. ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसी बात है.
अगर प्राइमरी कॉइल के ईच टर्न का जो फ्लक्स है दैट इज 5b, सो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर प्राइमरी कॉइल? np 5b. NP5B. np Yes. 5. So we can write that the total magnetic flux linked with primary coil is equal to np phi b. Similarly, total magnetic flux linked with secondary coil will be how much? ns phi b. This 5B. ns phi b. Now what we can do is you can call this voltage as Vp. This voltage you can call as Vp, voltage applied across the primary coil. So we can use which law we can use? Faraday's second law of EMI. Yes, sir. So EMF Faraday's, is equal to minus d5b by dt. yes. So induced EMF is equal to minus d phi b by dt. So for the primary coil, when we write this equation, we'll write Vp is equal to minus d by dt of the flux of primary, which is np phi b. यहाँ पर np constant है, so it will come out of the differentiation sign. So we'll get Vp is equal to minus np d phi b upon dt. यहाँ पर phi b बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि phi b टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, क्योंकि करंट टाइम वेरिंग है इस वजह से. एंड फॉर सेकेंडरी कॉइल इक्वेशन क्या बन के आएगी? Vs is equal to minus ns d5b by dt. Correct. Vs is equal to minus ns d phi b by dt. So let us take these equations as 1 and 2. Let us divide these. So you'll get Vp upon Vs is equal to how much? Np upon ns. Np upon ns. Correct. So this is the fundamental equation that applies to all transformers. You can put that in a box. This can be also written as Vp upon Np is equal to क्या? Vs upon Vs upon ns. So यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो ये है कि this implies कि voltage per turn is a constant. क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि Vp upon Np is equal to Vs upon ns. तो voltage per turn is constant for transformer. यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? K is equal to number of turns in secondary upon Number of turns in primary. Yeah. अगर हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कहाँ पे टर्न ज़्यादा होते हैं? ns में ज़्यादा. Okay. सेकेंडरी में. तो ns is greater than np. अगर ns बड़ा है np से तो k 1 से बड़ा होगा. Yes. बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, तो कहाँ पे टर्न्स कम होते हैं? Secondary में. सेकेंडरी में. down में second. तो ns लेस देन np अगर है तो k विल बी लेस देन 1. Yes, sir. तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट फॉर अ ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल एंड इसका डायग्राम. आप लोग नोट कर रहे हो? Yes, sir. ओके. सो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में? राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर. क्या क्या होते हैं एनर्जी लॉस? Hysteresis loss, magnetic loss, Copper loss. copper loss. ठीक है. और Current loss. पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉस, राइट? Yes. ठीक है. हिस्टेरेसिस लॉस का रीजन क्या होता है? ड्यू टू रिपीटेड Magnetization and demagnetization. Due to repeated cycles of
ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जो सॉफ्ट आयरन है उसके अंदर वियर एंड टियर होता है इस वजह से। ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। एंड सेकंड इज, याद है एडी करंट लॉस? Yes, sir. Yes. तो एडी करंट लॉस क्यों होता है? एडी करंट्स क्या होते हैं? जो कि इंड्यूस करंट्स सॉफ्ट आयरन कोर में घूमते हैं। ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट्स डेवलप्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर। ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट्स डेवलप्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर। और कौन सा लॉस होता है? Magnetic flux leakage loss. मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉस। और कौन सा होता है? ओमिक लॉस। Ohmic, yes, sir. ओमिक लॉस क्यों होता है? ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, राइट? ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, करेक्ट। ओमिक लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉसेस, है? Yes, sir. ठीक है। सो ये हो गए हमारे एनर्जी लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉस एंड ओमिक लॉस। आगे बढ़ते हैं। The third one is a step-up transformer converts a low input voltage into a high output voltage. जो step-up transformer होता है वो क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है ना। Yes, sir. तो वो बता रहा है कि a step-up transformer converts a low input voltage into a high output voltage. Does it violate law of conservation of energy? Explain. नहीं सर, क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो जाती है ना। करंट की वैल्यू कम हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो जो ट्रांसफार्मर है या फिर कोई भी मशीन जो आपने क्लास 12th में या क्लास 11 में पढ़ी है, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा हो। तो you can write कि the answer is no, it does not violate energy conservation principle. No, it does not violate energy conservation principle because the increase in voltage is accompanied by the decrease in current. Current. It is accompanied by, accompanied with. आप लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है तो किसी पता होगा आप लोगों को। accompanied with कर लेते हैं। No, it does not violate energy conservation principle because the increase in alternating voltage is accompanied with the decrease in alternating current. तो कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम भी हो रही है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है इस प्रोसेस में। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का सिंबल क्या होता है? Z. Z ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट में हमने कितने केस किए थे? Yes. 3. 3 केस किए। Z का फॉर्मूला क्या आता है? अंडर रूट R square plus XL minus XC माइनस whole एक्सी का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर। इसमें केस 1 क्या था? XL greater than XC. greater than XC. XL ग्रेटर देन XC, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ बोल रहा है कि Z का फॉर्मूला निकालना है आपको, और आपको बताया तो है नहीं कि कौन सा वाला केस है। तो अगर बताया ना हो तो आपको केस 1 लेके चलना है हमेशा, XL ग्रेटर देन XC। क्यों लेके चलना है केस 1? क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है ना, जो घर वाला, उसके अंदर हमारा XL ही डोमिनेंट होता है। XL होता है आपका डोमिनेंस में, डोमेस्टिक सर्किट में। तो अगर आप NCERT की कैलकुलेशंस वगैरह भी देखोगे तो उन्होंने इस वाले केस को ही समझाया हुआ है। तो लेट अस डू इट क्विकली। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कर लेते हैं इसको और पार्ट। तो कैसे करेंगे इसको अप्रोच? Circuit है. पहले बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम, LCR circuit. ठीक है। सो दिस इज द रेसिस्टर, दिस इज द इंडक्टर कॉइल, एंड दिस इज द कैपेसिटर,
and this is V is equal to V naught sin omega t. इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे वोल्टेज VR, यहाँ पे वोल्टेज VL, यहाँ पे वोल्टेज VC. VR है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, VL है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड VC इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. ये सारी की सारी जो वोल्टेजेस हमने लिखी हैं ये सब फेजर्स हैं, राइट? यस सर. और हम बोल सकते हैं कि V फेजर विल बी इक्वल टू क्या प्लस क्या प्लस क्या? VR PR प्लस VL plus VC. प्लस VC. इसके अंदर बताओ कि असली लड़ाई किसकी है? XL और VL और VC. VL और VC. बिल्कुल. VL और VC में कितना फेज डिफरेंस है? 180 डिग्री का. 180. यस सर. Let us draw the phasor diagram now. Alright. अच्छा, अगर ये हमारी टाइम वेरिंग क्वांटिटीज हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि what will be VR naught is equal to peak voltage across resistor, right? Yes sir. VR naught is peak Voltage across resistor. across resistor. Similarly, VL naught and VC naught are the peak voltages across inductor and capacitor. अब ये बताओ मेरे को कि ओम्स लॉ अगर लगाओगे, so what is the formula of VR naught going to be? I naught R. भाई रेसिस्टर में मैक्सिमम वोल्टेज कब आएगा? जब मैक्सिमम करंट बहेगा. Yes sir. और VL naught क्या हो जाएगा? I naught XL. I naught XL या I naught L? XL. क्योंकि XL ही ओमिक टर्म है. यहाँ पे क्या आएगा? I naught XC. I not not XC. ठीक है. What is the formula of XL? L omega. L omega. I hope कि इसमें कोई confusion ना होना चाहिए किसी को. XC 1 1 upon upon omega. omega c. 1 upon C omega. ठीक है. अब बनाते हैं हम फेजर डायग्राम. यहाँ पर किसको हम रेफरेंस मानेंगे? करंट को. Yes sir. क्यों? क्योंकि करंट सबके अंदर सेम होता है सीरीज में. हो गया I बार. इसके बाद ये कौन है? VR बार. VR bar. और ये कौन है? VL बार. VL bar. और छोटा वाला कौन है ये? VC बार. VC bar. तो VL बार बड़ा है कि छोटा है यहाँ पर? VL bar बड़ा. हाँ, VL बार बड़ा है क्योंकि XL बड़ा है XC से. सो इसको अगर हम करेंगे दोबारा से रीड्रॉ, सो सिचुएशन विल लुक लाइक दिस. ये है VR बार, ये है I बार, और ये कौन है? VL बार माइनस VC बार. 90 डिग्री जरूर मार्क करना. और अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करके शिफ्ट करके राइट साइड में ले जाएंगे. सो दिस इज VR बार, दिस इज I बार एंड दिस इज VL बार माइनस VC बार. प्लीज मेक श्योर कि आप L को L की तरह लिख रहे हो और C को C की तरह. एंड दिस इज what is this? This is V bar, the applied voltage. Yes sir. And this is the phase difference between voltage and current. अब यहाँ पे आप बताओ मेरे को कि करंट लैगिंग है कि लीडिंग है? Current leading. करंट नहीं current lagging. Sorry. हाँ. अगर हम देखते हैं इसको और इसको, तो रेस में कौन तेज दौड़ रहा है? V. Anti-clock. तो करंट इज क्या? Lagging. लैगिंग with respect to applied voltage by theta. इसके बाद क्या करेंगे? पीक वर्जन Yes sir. ऑफ वोल्टेज ट्रायंगल. तो इसका बनाएंगे पीक वर्जन, तो उसमें करंट मार्क नहीं करते. सो दिस इज गोइंग टू बी VR नॉट, दिस इज गोइंग टू बी VL naught minus VC naught, and this one is going to be V naught, and this is angle theta. Now इस वाले ट्रायंगल का क्या यूज होता है? इसका यूज होता है कि ये तो हमको थीटा देता है और ये हमको I naught देता है. Yes sir. इस ट्रायंगल से दो चीजें निकलती हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड पीक करंट का वैल्यू. कैसे निकलेगा थीटा? बाय यूजिंग tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? Perpendicular upon base VR naught minus VC naught upon VR naught. Correct. What is the formula of VL naught?
I naught XL minus Okay. I naught XC I upon naught is I naught XC upon I naught R. I naught R. I ठीक है, naught तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स minus XL minus XC upon R. बिल्कुल. So this is the formula. I naught निकालते हैं. कैसे निकालेंगे I naught? Pythagoras. Yes, sir. So Pythagoras theorem लगाओगे तो क्या लिखेंगे? Hypotenuse का square is equal to side 1 square plus side 2 square. So V naught square is equal to VR naught square plus VL naught minus VC naught whole square. So what is the formula of VR naught? I not R. I naught R. So इसको करते हैं put. So right side से common क्या आ रहा है? Not square. I naught square ब्रैकेट में आएगा R square plus XL minus XC whole square. So I naught square is equal to V naught square upon R square plus XL minus XC whole square. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? I naught आ जाएगा V naught upon square root of R square plus XL minus XC whole square. We will let this term as Z और यही हमको निकालना था. So this is the impedance of circuit. यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा I naught का फॉर्मूला V naught upon Z. I naught is equal to V naught upon Z. ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर कौन सा करंट? पीक करंट. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीक करंट. अगर आपसे पूछा होता है इंस्टेंटेनियस करंट तो क्या करते? I is equal to I naught and then trigonometric term. Sin omega t. ओमेगा Minus टी. t. हाँ, ओमेगा टी माइनस थीटा क्योंकि करंट लैगिंग है लीडिंग है? Lagging. करंट लैगिंग है ना. कितना लैग कर रहा है? थीटा से लैग कर रहा है ना. Yes, sir. तो I is equal to आया था V naught upon Z साइन ओमेगा टी माइनस थीटा कितना है? tan इनवर्स XL minus XC by R. XL minus XC over R. So this is the expression for Instantaneous current. instantaneous current. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? No, sir. ठीक है. What is the SI unit of Z? Ohm. Ohm. चले आगे. Yes, sir. ओके. इसके बाद क्या मांग रहा है? प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. क्या वर्सेस क्या? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. Frequency. यही बनाया हमने ये वाला ग्राफ. Yes, sir. बहुत बार बनाया है. सो ग्राफ ऑफ, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो कौन सा करंट बनाते हैं? पीक करंट लेते हैं हमेशा. Yes. पीक करंट. कभी भी वो बोलता है करंट तो आपको बाय डिफॉल्ट पीक करंट लेके चलना है. वर्सेस फ्रीक्वेंसी. किसकी फ्रीक्वेंसी? हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी. सो ऑन द y एक्सिस विल टेक पीक करंट एंड ऑन द x एक्सिस विल टेक फ्रीक्वेंसी. सो I naught एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? Hertz. हर्ट्ज. एंड I naught का एम्पियर. Ampere. और कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गेम चेंजिंग होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर जो गेम चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू नॉट या न्यू आर बोल सकते हो आप इसको. यू कॉल इट न्यू आर. सो दिस इज न्यू आर. और हम जानते हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. सो दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ आप जो है सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगा के नहीं ड्रॉ कर पाओगे, तो ये कंप्यूटर से ही ड्रॉ किया जाता है आफ्टर टेकिंग रीडिंग्स. सो ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा I naught मैक्स. पीक का पीक. द फॉर्मूला ऑफ I naught इज V naught अपॉन Z, राइट? Yes, sir. और जब रेजोनेंस आती है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z एट रेजोनेंस? R. R. Z becomes minimum at resonance. So the value of I naught becomes maximum
And how much is it equal to? V naught upon capital R. So यहाँ पे लिख सकते हो I naught max is equal to V naught upon capital R. So this is 0. So this is the graph that the question is asking. And what is the formula of resonant angular frequency? Omega R equal to 1 upon under root LC. Yes. ठीक है, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोग लिख ही लो, ओमेगा आर का फॉर्मूला ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. ये आर पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, ये आर पे डिपेंड नहीं करता, ये बात गौर फरमाने की है कि ये इसका वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? 2 पाई फ्रीक्वेंसी. 2 pi. ठीक है, सो ओमेगा आर विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू आर. सो यहाँ से न्यू आर विल बी ओमेगा आर अपॉन 2 पाई. सो न्यू आर विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. सो जो हमने न्यू आर ऊपर मार्क किया है उसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. व्हाट इज एल? एल इज इंडक्टेंस, Inductance. कैपेसिटेंस. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एल? Henry. हेनरी. एंड सी? Farad. Farad. And omega? Radian per second. Radian per second. हाँ. Radian per second. And frequency? Hertz. Alright. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद next चीज क्या है? Explain briefly how the phenomena of resonance in the circuit can be used in the tuning mechanism of a radio or a TV set. जो फिनोमेना है रेजोनेंस का, वो रेडियो की ट्यूनिंग मैकेनिज्म में या टीवी जो चैनल्स कैच करता है उसमें कैसे यूज होता है. तो रेडियो पे आपने देखा होगा कि एक गोल सा होता है ना डायल, उस डायल को हम घुमाते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैच करता है, अलग अलग चैनल्स आते हैं, राइट? इसी के बारे में ये बात कर रहा है. तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब अगर हम बात करते हैं रेडियो की, तो FM रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से चैनल्स आपने सुने होंगे? आपने सुने होंगे 91.1 मेगाहर्ट्ज, 92.7 मेगाहर्ट्ज, 93.5 मेगाहर्ट्ज, 94.3 मेगाहर्ट्ज. इस तरीके से अलग अलग चैनल्स हैं, उनकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं. 95 FM करके सुना होगा मेगाहर्ट्ज, फिर 102.6 मेगाहर्ट्ज, फिर 104 मेगाहर्ट्ज एंड सो ऑन 104.8. तो हल्का हल्का इनमें सेपरेशन है. और 106 मेगाहर्ट्ज. तो टिपिकली आपने देखा होगा कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 120 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ है वो अलॉट किया गया एफएम को, जिसमें अभी तक जो आपने सुने होंगे वो 91.1 से लेकर 106 वाले. तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं. अगर हमारे पास एक रेडियो सेट है, उसके ऊपर होता है एक डायल. इस डायल को जब आप करते हो रोटेट, तब आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हो, है ना? थोड़ा सा घुमाया तो 91.1 आ गया, फिर और घुमाया तो 92.7 आ गया. तो वो देखा होगा ना जो कारवा करके चलता है आजकल वाला. सो घुमाते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम करते हैं सेलेक्ट. सो देयर इज अ डायल विच हेल्प्स अस टू सेलेक्ट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑन द रेडियो. तो इसके अंदर लगा होता है एक बेसिकली रिसीवर एंटीना, और जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा होता है. जैसे कि मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं 93.5 मेगाहर्ट्ज वाले की, तो इनका एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होगा, कहीं पर होगा, नोएडा में जैसे है. सो यहाँ पे लगा होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो 93.5 मेगाहर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है जिससे वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है. और हमारा जो रेडियो है उसमें डायल लगा हुआ है, डायल को घुमाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं सेलेक्ट. तो ये पूछा है कि रेजोनेंस का उसमें क्या रोल है. तो फ्रीक्वेंसी का जो सिलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग करना. फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन बाय अ रेडियो ट्यूनर इन्वॉल्व्स रेजोनेंस फिनोमेना. तो होता क्या है कि जब हम इस डायल को घुमाते हैं तो डायल को घुमाने पर इंटरनली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती हैं. देखेंगे कि ऑन रोटेटिंग द डायल
on rotating the dial, the value of L and C get adjusted. और जब L और C की वैल्यूज एडजस्ट होंगी तो जो ओमेगा है उसकी वैल्यू चेंज होगी. तो लिखेंगे कि एज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू जब आती है ओमेगा आर की जो कि एक्सटर्नल सिग्नल से मैच करती है तब रेजोनेंस अचीव होता है. आपने सुना होगा कि रेजोनेंस कब होता है? जब दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती हैं. तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब एक्सटर्नल जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इस वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तब रेजोनेंस आ जाएगा. तो लिखेंगे कि अ स्टेज कम्स व्हेन it matches with a particular external signal जो कि बाहर से ट्रांसमिट होकर आ रहा है. एक्सटर्नल सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो कि हम बात कर रहे हैं एक रेडियो सिग्नल की. एंड अ शार्प रेजोनेंस इज अचीव्ड. और जब रेजोनेंस आती है तो करंट मैक्सिमम फ्लो करता है. एंड अ शार्प रेजोनेंस इज अचीव्ड एंड मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू सर्किट. And maximum current flows through circuit, and hence we are able to receive a particular channel. ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे हम बातें लिख रहे हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम्स करके चैप्टर हुआ करता था, दैट इज नाउ नॉट इन योर सिलेबस. तो वहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट था. तो यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है जस्ट इन केस यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस कि जब हम डायल को करते हैं रोटेट तो हम इंटरनली एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं जिससे कि हमारा जो ओमेगा आ रहा है उसकी वैल्यू चेंज होती है. और जब उसकी वैल्यू बाहर के सिग्नल से मैच करती है तब रेजोनेंस अचीव होता है और करंट मैक्सिमम फ्लो करता है और जो पर्टिकुलर चैनल है वो हमको सुनाई पड़ता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस टिपिकली. लिख लिया ये? ठीक है. हाँ सर, 1 मिनट. So, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ अ रेडियो. ओके. सो 2011 के पेपर में तो यही था. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज 2010. सो लेट्स सी कि वहाँ पर क्या है. ऑलराइट. तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हैं अगेन. क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर से है? Chapter 1. In which orientation dipole placed in uniform electric field is in stable and unstable equilibrium? Stable equilibrium कब आता है? Theta जीरो होता है. थीटा 0 डिग्री किसके बीच में? P and E vector. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड अनस्टेबल में 180. 180 डिग्रीज. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री between small p vector and capital E vector, and we can also draw the diagram. So if this is the electric field, then this is going to be the electric dipole moment vector P vector. P vector की डायरेक्शन क्या होती है? Negative. माइनस क्यू से प्लस क्यू. हाँ, माइनस क्यू से प्लस क्यू. सो माइनस क्यू से प्लस क्यू करके दिखा देना इसको इस तरीके से. एंड अगर हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तो थीटा इज हाउ मच? 180 डिग्री बिटवीन पी वेक्टर एंड ई ई वेक्टर. तो बस इसको आप ऑपोजिट दिखा देना इसमें. सो इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता हुआ. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? पेनिट्रेटिंग मतलब
पेनिट्रेटिंग मतलब घुसने की पावर। गामा रेज। गामा गामा रेज बिल्कुल, गामा रेज। आपने वो सुना होगा ना कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में जब बॉम्ब गिरा था तो बहुत डैमेज हो गया था कई जनरेशन्स तक, तो गामा रेज घुस गई थी बेसिकली लोगों के बॉडीज़ में, तो उन्होंने पूरा जेनेटिक खराब कर दिया था। सो बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कितने होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने टाइप के होते हैं वेव्स जो हमने पढ़े हैं? 7 पढ़े ना, मैक्सवेल्स रेनबो। यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो 7 तरह के होते हैं वो याद है ना आप लोगों को सीक्वेंस में? यस सर। यहाँ पे कौन सा होता है? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव, ठीक है, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, हाँ उसके देन बाद यूवी, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, हाँ विजिबल लाइट, उसके बाद यूवी, यूवी, ठीक है अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्स X-rays, रेज, एक्स रेज एंड देन गामा, गामा रेस, गामा रेज। तो किसका है मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर? गामा, गामा, और किसका है मैक्सिमम वेवलेंथ? रेडियो, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को। हाँ, कैसे याद रखेंगे? क्योंकि रेडियो वेव्स यूज होती है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, तो क्योंकि इनका वेवलेंथ अच्छा खासा होता है तो ये बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट हो पाती हैं। तो ये इनका है लैम्डा मैक्स और इनका है लैम्डा मिन, ठीक है। और यस सर, यस यहाँ सर, पे आता है विजिबल। विजिबल का वायलेट किसके पास? अल्ट्रा वायलेट के पास है ना। यस सर, और रेड किसके पास? इंफ्रारेड के पास। क्या कितना होता है रेड का वेवलेंथ? 400 से 700 तक होता है सर। रेड का 700 नैनोमीटर, और वायलेट का 400 नैनोमीटर। हाँ। सो दिस इज व्हाट वी हैव। एंड अगर हम चाहेंगे लेफ्ट टू राइट तो एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू Equal एच to यू, एच न्यू। एच न्यू। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखो तो सही रहेगा। अच्छा ये बताओ कि इंफ्रारेड का कोई यूज है क्या? हाँ सर, हाँ गर्म, सर। क्या क्या? पहला क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ पल्स हाँ पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट आया है मार्केट में। और फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और टीवी इंफ्रारेड के लैंप्स। रिमोट के आगे जो बिल्कुल, लाइट, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज गामा रेस। वी कैन जस्ट राइट दैट फॉर रिकॉर्ड पर्पस कि गामा रेस हैव क्या? मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा, गामा और एक्स रेज में से किसकी किसकी कम होती है? गामा और एक्स रेज में से एक्सरे की कम, एक्सरे की कम होती है। तो एक्सरे की होती तो है पेनिट्रेटिंग पावर, वो हमारी फ्लैश को पियर्स करके अंदर जाके बोन्स की फोटो खींच लेती है, लेकिन गामा रेज बर्बाद कर देती है उसको। क्वेश्चन नंबर 3, which of the two has larger value of self inductance? There are two inductors A and B. A plot of magnetic flux versus current is shown in the figure. तो ये आपको ग्राफ दे रखा है और क्या पूछा है? किसका इंडक्टेंस ज़्यादा है? तो किसका ज़्यादा होगा? ज्यादा, हाँ, हाँ ए का ज़्यादा होगा ना, 5 कैसे अपॉन जज कर रहे हो? तो है ना सर। फाई, I is equal to Li, फाई बी इक्वल टू एल फ्लक्स आई। ज़्यादा। Li, तो ये होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। yes sir, यस सर। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो एक का बेसिकली ए का ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए वाले का जो एंगल है वो ऐसा लग रहा है कि 60 डिग्री है, इसका एंगल ऐसा लग रहा है कि 30 डिग्री टाइप से, है ना। ऐसे ही सर। समझने के लिए, यस, बात करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा बेसिकली टॉपिक ये चीज़ रिवाइज हो जाना चाहिए कि द स्लोप ऑफ फाई बी वर्सेस आई ग्राफ गिव्स व्हाट? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का वैल्यू, यस। तो हम देख पा रहे हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का कि बी का? ए का। ए का। तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, और क्योंकि स्लोप देता है इंडक्टेंस तो देयरफॉर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर ए इज ग्रेटर देन इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर बी। सो दिस इज दैट। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या मांग रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस? कैसे निकालेंगे इसको? QI upon epsilon क्यू naught आई अपॉन Epsilon naught. गॉस लॉ। Gauss law, yes sir. तो क्यू आई क्या होता है? चार्ज इनसाइड द Internal, Inside हाँ. the इंटीग्रेट टू द गॉसियन सरफेस। ये जो अजीब सा रैंडम सा सरफेस दिख रहा है, यही हमारा गॉसियन सरफेस मान सकते हैं हम। तो कितना चार्ज अंदर है? 2Q minus Q. 2q माइनस एडिटिविटी ऑफ चार्जेस Q. कर देंगे तो आ जाएगा q। ठीक है, Q. Q. क्यू आई हो जाएगा 2q माइनस q यानी कि q। Q. सो आंसर आ जाएगा q अपॉन Epsilon. Epsilon naught. Epsilon naught. फाइन। सो लिख देते हैं कि बाय विच लॉ? Gauss law. बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ जाएगा 2q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आएगा इसका? गायब हो गया वो ग्लास का लेंस पानी Answer में। 1.45. 1.45 भी आएगा। हाँ, Yes. same होगा. कोई भी अगर ग्लास लेंस गायब हो रहा है किसी लिक्विड में, तो लिक्विड का हम्म. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सेम एज ग्लास लेंस का Glass law. रिफ्रैक्टिव हाँ. इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड will be equal to the refractive index of the lens material which is how much 1.45। 4-5. ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल आ रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने में, सोचते हैं कि 1 मार्क वाले डिफिकल्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके फंडे क्लियर है तो यू कैन गो वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स? ये किस चैप्टर का है? Atoms. Atoms. Corresponding to first excited state and ground state. What is ground state का principal quantum number? 1. 1. n is equal to N 1, equal to 1. n equal to 2 for 2. first excited state। तो ये क्या मांग रहा है? सेकंड वाला अपॉन पहला वाला या पहला वाला अपॉन सेकंड वाला? Second upon पहला वाला. सेकंड वाला, हाँ। 2/1. ये मांग रहा है आपसे R2 अपॉन R1। Yes sir. रेडियस का डिपेंडेंसी क्या होता है n पे? व्हाट इज द फॉर्मूला? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Equal to n स्क्वायर अपॉन z 52.9. इनटू Hence, 52.9 52.9 हाँ। picometer. तो रेडियस जो होता है वो nth ऑर्बिट का, दैट इज n स्क्वायर अपॉन z से वेरी करता है। तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट क्या आएगा? और यहाँ पर z 1 के बराबर है क्योंकि कौन सा एटम दे रखा है? हाइड्रोजन Hydrogen. एटम। सो द फॉर्मूला ऑफ Rn विल बी n स्क्वायर इनटू 52.9 पिकोमीटर्स। तो R2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर इनटू 52.9 पिकोमीटर, एंड R1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर इनटू 52.9 पिकोमीटर। तो कितना आ जाएगा रेशियो? हाँ, 4:1. 4:1 आ जाएगा, बिल्कुल। सो R2 अपॉन R1 इज गोइंग टू बी 4:1। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चीज़ याद होनी चाहिए? फॉर्मूला ऑफ Rn का फॉर्मूला. रेडियस का फॉर्मूला, बिल्कुल, n स्क्वायर अपॉन z। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो क्या करोगे? तो ड्राइव करनी पड़ेगी। Derive. तो ड्राइव करना एक टीडियस प्रोसेस है, तो Yes, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप इसको याद कर लो पक्के से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। कैसे करेंगे ड्राइव? वो यूज़ करेंगे बोर का फर्स्ट पोस्टलेट, बोर का सेकंड पोस्टलेट। Yes sir. V की वैल्यू निकाल के हाँ और फिर उसमें डाल देंगे. बिल्कुल। तो ये हो जाएगी आपकी पहली इक्वेशन, और दूसरी Second इक्वेशन क्या रहेगी? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 2/. इनको आप करके, ये सेंटीमीटर फोर्स है और ये हमारा कूलम्बिक अट्रैक्शन वाला फोर्स है, याद है ना ये सब? Yes sir. ठीक है, ओके। 7th में इन्होंने क्या किया, जो वायर है रेजिस्टेंस उसका है 8R, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। Yes व्हाट इज द sir. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर AB? Sir 4R पैरेलल में. हाँ, यानी कि 2R। हाँ. Yes. अगर सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो हाफ हो जाता है ना। Yes sir. Yes. ठीक है, तो 8R की वायर थी, ए और बी में अगर इसको क्लैम्प कर दिया तो ये वाला सेगमेंट हो जाएगा 4R का, और ये वाला सेगमेंट हो जाएगा 4R का। और 4R एंड 4R इन पैरेलल विल गिव 2R। 2R. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, Plus R2. Yes sir. यानी कि 4R इंटू 4R अपॉन 8R। सो दिस विल बी 4R. 2R। तो क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज हाउ मच? 2R. 2R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? हाँ सर कि IC से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस.
और पहला डेंसर से एरिया में जाना चाहिए। डेंसर से रेयर जानी चाहिए, ठीक है। तो पहली है कि लाइट रेज मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर रेयर मीडियम। लाइट रेज मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC। ठीक है, ये सवाल किस चैप्टर का है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा रिपीटर का है। रिपीटर वैसे पता होगा आप लोगों को, सिग्नल की रेंज बढ़ाने के काम आता है, बट ये सिलेबस में नहीं है। घर में भी लगाते हैं लोग रिपीटर। वाईफाई अगर लगा हुआ है आपके घर में, राउटर लगा हुआ है, तो अगर 3-4 कमरे हैं, जो कि होते नहीं है लोगों के घर में यूजली, तो अगर है तो दूर तक सिग्नल पहुँचाने के लिए रिपीटर हमको हेल्प करता है। ओके, परमानेंट मैग्नेट्स तो कटा हुआ है, ये सब कटा हुआ है। सो दिस इज नॉट इन सिलेबस, दिस इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। नंबर 11 किस चैप्टर का? Semiconductors. Photodiode. Draw the circuit diagram of an illuminated photodiode in reverse bias. How is photodiode used to measure light intensity? तो photodiode को हम लगाते हैं रिवर्स बायस में, ये बात कभी करी है हमने? photodiode को हमेशा रिवर्स बायस में। हाँ, सो अगर हमें बनाना है इसका सर्किट डायग्राम ऑफ photodiode. Photodiode is nothing but a PN junction diode only. So this is, what is this? This is the PN junction. This is the PN junction, and this is our depletion layer. Depletion layer, and this is the P side and this is the N side, Inside. and there is a transparent window over here. And what kind of biasing we do here? Reverse biasing. Reverse biasing मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे लगा देंगे एक माइक्रो एमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए, एंड इसको हम इसके ऊपर क्या डालते हैं? लाइट डालते हैं। सो ये जो लाइट है इसकी एनर्जी मान लेते हैं, ये है एनर्जी E = h न्यू, और यहाँ पे होता है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। एन साइड में होते हैं बहुत सारे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। एंड पी साइड में होल्स होते हैं बहुत सारे। तो पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, एंड एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। एंड पी साइड में माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एन साइड में माइनॉरिटी में होल्स। और यहाँ पर एक होती है जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, इसे बोलते हैं EI वेक्टर। बैरियर पोटेंशियल भी होता है यहाँ पर, बिल्कुल, तो भी आप मार्क कर ही लो। तो होता है इस तरीके से, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल VB। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इल्यूमिनेटेड फोटोडायोड, क्योंकि इसको हमने इल्यूमिनेट किया है। दिस इज एन इल्यूमिनेटेड फोटोडायोड। नाउ अब इसके अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आता है? ऑब्जर्वेशन आता है कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं हम, कि जो करंट आता है सर्किट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट is directly proportional to the intensity of incident light. ये बात दिमाग में रखनी है आपको कि जो फोटो करंट आएगा यहाँ पर, उसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है जो आपने लाइट इंसिडेंट करी है इसके। दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। तो अगर हम बनाते हैं इसका ग्राफ, सो ग्राफ बेसिकली आता है इसका थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज इट इज रिवर्स बायस्ड अरेंजमेंट। सो दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज द
current in the circuit. Sorry, ulta kar diya maine. This is the voltage and this is the current. And the current is very small, so it is microamperes, and this is in volts. So you will get curves like this. So these are the characteristics of a photodiode. As the intensity value goes on increasing, the value of current goes on increasing as well. So ये जो I1, I2, I3, I4 है, ये intensity है हमारी incident light. These are the intensity of incident light. ठीक है, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी में कोई भी चेंज होगा तो जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू बदलेगी, तो वी विल गेट टू नो कि चल क्या रहा है. एनी चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, any change in the intensity of incident light changes what? Current. What? Changes the magnitude of photocurrent. So any change in the intensity of incident light changes the magnitude of photocurrent. All right. So this is, and this is how we measure light intensity using a photodiode. Question number 12 पे चलते हैं. An electric lamp having negligible inductance. ये जो लैम्प है इसका इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है, तो क्या है इसके पास? रेसिस्टेंस है इसके पास. भाई अगर कोई लैम्प है तो जिस तरीके से मैंने बना रखा है, इट लुक्स लाइक अ फिलामेंट, राइट? फिलामेंट लग रहा है. फिलामेंट का रेसिस्टेंस मान लो आप. तो विच सर्किट इज दिस? This is the series RC circuit. This is a series RC circuit. Yes. अब क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है कि how does the brightness of lamp change? तो लैम्प की ब्राइटनेस वो कैसे बदलेगी on reducing capacitance and reducing frequency. लैम्प की ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है? करंट. करंट पे. बहुत बढ़िया. तो हमें देखना कि करंट का क्या होगा. इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है? अंडर रूट R square plus XC. What is the formula of XC? 1 upon omega c. 1 upon omega c. बढ़ाएंगे. अब फर्स्ट पार्ट में क्या चीज डिक्रीज करी है? c कम कर दिया. c कम किया है. c कम करने से z क्या क्या होगा? कम हो जाए. देखो बढ़ जाएगा. देखो अगर c को कम करोगे तो xc बढ़ जाएगा, और xc बढ़ेगा तो z बढ़ जाएगा, और z बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा. करंट कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी. वेल, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट. आपको ध्यान रखना है कि ब्राइटनेस डिपेंड करती है कि कितना करंट है, करंट डिपेंड करता है कितना z है, z डिपेंड करता है कि कितना xc है, xc डिपेंड करता है ओमेगा और c का क्या सीन है. सो इसको जरा लिख के कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. The formula of z is under root of r square plus xc square. The formula of xc is 1 upon omega c. 1 upon omega c. ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट में क्या चीज रिड्यूस करी है? c. Capacitance. तो अगर c को हम करेंगे रिड्यूस, if c is reduced, what happens to xc? Increases. xc gets increased, and when xc gets increased, z gets Increased. and when z gets increased, current gets Decreased. कैसे पता? क्योंकि I नॉट था ना, V नॉट अपॉन Z, V0 upon Z. हाँ. वहां से आ रहा है ये. and if I gets decreased, brightness gets Decreased. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ब्राइटनेस, जितना कम करंट उतनी कम ब्राइटनेस. सेकंड पार्ट. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं C डिक्रीज, XC डिक्रीज, Z डिक्रीज. प्लीज डोंट डू दिस इन द एग्जाम. प्लीज राइट reduced, increased, increased, decreased, decreased. Don't use upward and downward arrows if you are in the habit of doing that. सेकंड पार्ट में क्या किया है इन्होंने?
फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करके। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया है, तो फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड। फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने से क्या होगा? एक्सी का बढ़ जाएगा, एक्सी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक्सी ओमेगा पे डिपेंड करता है इनवर्सली। हाँ ओमेगा 2 Yes. पाई ओमेगा न्यू होता फ्रीक्वेंसी है। पे डिपेंड करता है हाँ भाई। एक्सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो एक्सी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ और एक्सी बढ़ेगा तो जेड। बस दोनों केस में कम ही होता है। हाँ, दोनों केस में ब्राइटनेस कम ही हो रही है, कोई सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आई गेट्स डिक्रीज्ड एंड सो ब्राइटनेस गेट्स डिक्रीज। डिक्रीज्ड। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है वो ये है कि ब्राइटनेस डिपेंड करती है किस पे? करंट करंट। और फिर आपको इस तरीके से अप्रोच करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, लास्ट में है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इन चारों में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा सबसे छोटी किसकी है? रेडियो पे रेडियो। तो लिखेंगे रेडियो क्या? लेस देन ग्रेटर देन? लेस लेस देन देन माइक्रो, माइक्रो लेस लेस देन, देन एक्स-रे। यानी X-ray कि less than gun. फिर गामा रेस। क्या रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर क्या मांग रहा है? दो यूजेस, एनी वन ऑफ दीज, किसी भी एक के दो यूज मांग रहा है। तो किसके पता है हमको दो यूज? एक्स-रे। एक्स नहीं, सबके पता होना चाहिए वैसे तो। चलो लिख ही लेते हैं सबके। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या था ऑर्डर? रेडियो इज लेस देन माइक्रो इज लेस देन एक्सरे इज लेस देन गामा। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव्स के यूजेस होते हैं कोई? कम्युनिकेशन। हाँ सर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन वाले को आप स्प्लिट आउट कर दो कि रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, और दूसरा मोबाइल फोन वाला सेलुलर। तो दोनों के दोनों पॉइंट एक ही हैं, कम्युनिकेशन वाले ही हैं, क्योंकि रेडियो का पर्पस यही होता है और कोई पर्पस नहीं है इसका। ये हो गया माइक्रोवेव्स के। हीटिंग। हाँ, माइक्रोवेव ओवन वाला जो हीटिंग इफेक्ट है। और कम्युनिकेशन बिल्कुल। कौन सा वाला? रेडार। रेडार का यूज क्या होता है? फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन ना। यस सर। यस सर। वो आता नहीं है कि कोई एरोप्लेन निकल रहा था बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से और फिर रेडार पे सिग्नल गायब हो गया। सर एयरक्राफ्ट वो सिर्फ मरीन साइड नहीं होता? हाँ, उसके लिए भी होता है रेडार। रेडार तो एक डिवाइस है बेसिकली एक, तो वो उसके लिए भी होता है, नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी। उसके बाद एक्सरेज का क्या यूज है? सर तो हाँ फ्रैक्चर्स वगैरह डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर। और क्या यूज है इसका? एक और वही यूज है कि टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटालिक शीट्स इन इंडस्ट्री। कोई भी अगर मेटालिक शीट है उसमें कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, तो टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटालिक शीट्स इन इंडस्ट्री। और गामा रेस का कोई यूज है? गामा रेस तो खतरनाक है। हाँ दे आर यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्सिनोजेनिक सेल्स को किल करने के काम आती है ना। हाँ रेडियोथेरेपी में। टू किल कैंसर सेल्स, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। Yes. दैट इज कार्सिनोजेनिक सेल्स। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो होती है सेमीकंडक्टर्स वाली, उसके अंदर भी इसका यूज होता है, इस टेक्नोलॉजी का, गामा रेस का। कहाँ पर? वो पढ़ा नहीं है ना, कुछ आगे जाके भी तो पढ़ोगे 12वीं के बाद। अच्छा ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। हाँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कौन सा फार्मूला? लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू है -1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो कितना है फोकल लेंथ? 12। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखते ही ये पढ़ा करो कि निकालना क्या है, फिर आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है म्यू एम? कितना है म्यू एम?
मेरा 1 ठीक है, और कुछ म्यू नहीं given है। वो निकालना 1.10 निकालना है। R1 10 सेंटी, R2 15 15 सेंटीमीटर। तो डाल देते हैं इसको, और जब इसमें वैल्यूज डालोगे तो साइन कन्वेंशन का ख्याल रखोगे क्या? हाँ यस सर Yes. बिल्कुल। तो 1/10 नहीं, 1 क्या था, 12, हाँ 12 1/12 इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू म्यू माइनस अपॉन 1 1/10 माइनस क्या, माइनस 1 अपॉन -15। यस सर Yes. तो 1/10 12 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/10 प्लस 1/15। ये समझ में आ रहा है क्या माइनस साइन क्यों आया है? यस Yes, sir. क्योंकि इसका झुकाव राइट साइड में है तो पॉजिटिव, इसका झुकाव लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ पे R1 को हमने पॉजिटिव पकड़ा है और R2 को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 and 15? 30 30। तो कितना आएगा म्यू -1, हाफ। 4 1/2 हाँ भाई, 3 और 2 5, 5 और यस 6 और 2, तो कितना आ रहा है म्यू? यस 1/2 + 1 1.5 आ रहा है। 1.5 3/2 हाँ ठीक है, यस ठीक है, बढ़िया। तो ये सवाल था लेंस मेकर फॉर्मूले का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या निकालना है? Lambda de Broglie wavelength. ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का हाँ इलेक्ट्रॉन को भगाया है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है? 100 100 वोल्ट तो व्हाट इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए? 12.27 upon under root V angstrom. बहुत बढ़िया। तो ये फार्मूला तो बहुत बढ़िया फार्मूला है। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के ये हमने लिए ऐसा स्पेशल केस किया था क्लासेस में। यस सर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉम। वी कितना है यहाँ पर? 100 100 है। 100 का रूट 10 10 10, तो कितना आएगा? 1.2 1.227 एंगस्ट्रॉम व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? 10 की पावर R -10 -10. क्या? मीटर मीटर। एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ की। सो ये आ गया आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे? बेसिक से। व्हाट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यस सर यस सर तो एच अपॉन पी, तो जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। 2m तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2m के ही। 2m के ही हाँ तो इसको डाल देंगे तो बहुत टाइम पास करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। एच अपॉन अंडर रूट 2m के ही। What is the kinetic energy acquired by a charge which is accelerated by potential difference v? qv। qv यस सर तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m qv। अब m किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो कि वैल्यू पता होती है। q किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो पता होती है। h वैल्यू पता होती है, 2 पता होता है। सब कुछ डालने के बाद आता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो सारा काम किया जा चुका है। तो आपने जो इंपॉर्टेंस इसको दी है वो इंपॉर्टेंस आप इसको भी दो। ये फॉर्मूला कौन से पार्टिकल के लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर आपने गलती से भी इसको इग्नोर कर रखा है तो इसको आप याद कर लो, बहुत जैकपॉट क्वेश्चंस होते हैं इसके, तुरंत मार्क्स मिल जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्ड। भाई पूछ रहा है कि कौन सी वाली है ये, क्या ये एक्स रे है, क्या ये गामा रे है, क्या ये यूवी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन जनरल इलेक्ट्रॉन को जब भी हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो एक्स रे में फॉल करता है। तो आप इसको एक्स रे में डाल के आओगे तो लिखेंगे कि दिस बिलोंग्स टू एक्स-रे हाँ, दिस बिलोंग्स टू एक्स रे रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्चुअली एक्स रे और ये गामा रे जो होते हैं दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एक्स रे, क्योंकि एक्स रे कैसे पैदा होती है? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करके बम्बार्ड करते हैं मेटल के ऊपर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक्स रे लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके ना शार्पली डिफाइंड रीजन्स नहीं है एक्स रे के और गामा रेज के, काफ़ी ओवरलैप है दोनों के अंदर। सो मोर रेलेवेंट इज एक्स रे ओवर हियर। ओके, 16th में करते हैं। 16th को बाइंडिंग एनर्जी, ये न्यूक्लियस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई का।
ये थोड़ा सा डाइसी है कि ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में है कि नहीं, बट क्वेश्चन बड़ा आसान है तो कर लेते हैं इसको. A heavy nucleus X of mass number 240. What is mass number? A. Mass A. number is A. Yes. Number of protons plus number of neutrons inside the nucleus. ठीक है. So बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी याद है ना, पढ़ा था हमने बाइंडिंग एनर्जी. Yes, sir. हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी जो भी है उस न्यूक्लियस की, उसको आपने डिवाइड कर दिया उसके मास नंबर से. बेसिकली उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. क्योंकि न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियंस होते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं अंदर. इट इज स्प्लिट इनटू टू फ्रैगमेंट्स y एंड z. तो x जो है टूट के y और z बना रहा है, तो यानी कि x गिव्स y प्लस z. ये दे रखा है आपको. x का मास नंबर 240, y का 110 और z का 130. देखो कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है. हाँ, yes, sir. ठीक है, देखो ये भी 240 आ रहा है, ये भी 240 आ रहा है, तो कंजर्व्ड रहता है मास नंबर हमेशा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर. बता रखा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है x का, वो है 7.6 मिलियन eV. जो x का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज 7.6 मिलियन या मेगा eV. और जो बाइंडिंग एनर्जी है y और z का, वो कितना है? 8.85 million. 8.85 मिलियन eV. y का भी इतना ही है और z का भी इतना ही है. अब ये जो रिएक्शन होती है ना, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि जिसमें एक बड़ी चीज, एक बड़ी न्यूक्लियस टूट के छोटी न्यूक्लियस में बिखर जाती है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है. तो यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी Q. ऐसा कुछ आता है, Q लिखा था हमने. Yes, sir. हाँ, तो Q निकालना है यहाँ पे. तो Q क्या करना है, इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, मतलब कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की. तो आपको शायद याद होगा कि जब हमने न्यूक्लियर फिजन किया था, तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर फिजन करवाने के लिए हमें एक लेना होता है हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस. और ये हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप नहीं टूटता, इसके ऊपर हमें स्लो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करवाने पड़ते हैं. ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, Yes. sir. हम स्लो न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बॉम्बार्ड करवाते हैं, तब ये टूटता है. तो इस तरीके से हम करवाते हैं बॉम्बार्ड, तब ये बिखरता है छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में. तो यहाँ पर इसको x बोला गया, इसको y बोला गया, इसको z बोला गया है, और यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन की बात नहीं की गई है. तो ये थोड़ा सा इसमें एक कैच है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्लो न्यूट्रॉन की बात ही नहीं करी, अदरवाइज वो भी थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर देगा. दैट्स ओके. क्वेश्चन सारे के सारे हमेशा एक्चुअल सिनारियोस पे बेस्ड नहीं होते, तो दे आर आल्सो हाइपोथेटिकल समटाइम्स, सो दैट्स व्हाई दिस मे हैपन. सो 110, 130, तो ये सिनेरियो है. अब x की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो दे रखी है आपको कितनी, 7.6 मिलियन eV. y की कितनी है, 8.85 मिलियन eV बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और z की भी इतनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस होते के अंदर रहने वाला पार्टिकल. बिल्कुल. कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन हैं. और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन. हाँ, यानी कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है और प्रोटॉन भी न्यूक्लियन है. न्यूक्लियन है. तो इसमें x में कितने न्यूक्लियंस हैं? 240 न्यूक्लियंस हैं. तो बाइंडिंग हाँ. एनर्जी कितनी आएगी x की? याद आएगी 7.6 इंटू 240 MeV. क्योंकि यहाँ बता रखा ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है, यानी कि एक न्यूक्लियन की इतनी है, तो 240 न्यूक्लियंस की जाएगी 7.6 इंटू 240 MeV. Yes, sir. तो ये निकाल लो कितना आ रहा है. Yes. 1824. 1824 आ रहा है. ठीक है. MeV. अब y की निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी y की, क्या इंटू क्या? 11 into 8.8. है ना, 8.85 इंटू 110 110. MeV. और z की 130 into 8.85. हाँ, तो अगर दोनों की ऐड कर दोगे तो BEY प्लस BEZ. ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में है, तो इसलिए उनको ऐड कर रहे हैं. तो कॉमन क्या आएगा? 8.85. ठीक है, तो इट विल एसेंशियली बी 8.85 इंटू 240. 240. तो ये कितना आ रहा है? Two one two four. 2124. क्या? Million electron volt. MeV.
मिलियन ईवी, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में लिख देना प्लस क्यू। तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट की? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की। हमेशा न्यूक्लियर फिशन जब भी होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, आपके जब आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस असर्शन रीजन वाले, तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती है यहाँ पे कि जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। बढ़ती बढ़ती है। ये कैलकुलेशन करके आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू का वैल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नाम पे सिर्फ एक्स ही है, तो कहने के लिए रिएक्टेंट्स है बट है वो सिर्फ एक्स ही। तो कितना आएगा 2124 माइनस 1824 माइनस 300 300 क्या MeV। MeV। तो ये करना है इसके अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं है, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी क्यू रिलीज्ड पर फिजन। पर फिजन यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 240 पार्टिकल्स इन्वॉल्व थे तो आपको 240 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये जो है पूरे के पूरे फिजन की है, आपको निकालना है पर फिजन। तो एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन क्या हो जाएगी, क्या अपॉन क्या? 300 by Q 240. upon हाँ 300 MeV अपॉन क्या 240, 240। क्योंकि 240 पार्टिकल्स ने पार्टिसिपेट किया ना इसके अंदर। यस सर। कितना आ जाएगा? 1.25 1.25 क्या MeV। पर MeV। न्यूक्लियन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. 1.25 MeV पर न्यूक्लियन। तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत ही मीगर है हमारे सीबीएसई के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी सी है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है ऑनेस्टली कि ये टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है, बट हमने कर लिया है तो जस्ट इन केस इट कम्स तो आप लोग मैनेज कर लोगे ये सब। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेट्स द क्लियर स्काई। ऐसा जानते हैं हम, मानते हैं तो है ना। यस सर। यस सर। तो आसमान नीला क्यों होता है? सर वेवलेंथ कम होता है ना ब्लू कलर का, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग इन्वर्सली ऑफ लाइट, प्रोपोर्शनल स्कैटरिंग होता ऑफ लाइट, बिल्कुल। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हमारे सिलेबस में है नहीं एक्चुअली, है ना, इसलिए हमने पढ़ा भी नहीं है। तो आप लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है, ये क्लास 10th 9th का सवाल है। तो आसमान नीला क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नीला कलर ज़्यादा फैलता है, ठीक है। वायलेट कलर इज सीन इन द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ प्रिज्म। ऐसा होता है क्या? है। हाँ सर। जब हम प्रिज्म से पास करते हैं व्हाइट लाइट तो विबग्योर मिलता है, और विबग्योर लिखते हैं उल्टा से, लिखते हैं विबग्योर नीचे से ऊपर। यस सर। ये कह रहा है कि वायलेट लाइट बॉटम पे क्यों दिखती है, ऐसा क्यों है? Energy कम होती है। हैं? नहीं, वेवलेंथ। कॉची, अच्छा, कॉची। कॉची। हाँ, भाई डिस्पर्शन किसने समझाया था? कॉची के जूते समझाते हैं कॉची। डिस्पर्शन को। हाँ। yes. कॉची का नाम सुना है कभी? हाँ सर। हाँ, yes. कॉची का बस फॉर्मूला लगा है। दो। तो कॉचीज फॉर्मूला क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा से इनवर्सली वेरी करता है। यस सर। तो कॉचीज फॉर्मूला बोलता है कि जो म्यू होता है वो लैम्डा से इनवर्सली वेरी करता है। हम बात कर रहे हैं कौन से वाले कलर की? वायलेट। वायलेट की, Violet. ठीक है। व्हाइट लाइट में होता है विबग्योर, व्हाइट लाइट हैज गॉट विबग्योर। अब बताओ कि इसमें से सबसे कम लैम्डा किसका है? से कम lambda. वायलेट। वायलेट का R का red. नहीं. वायलेट का, रेड का सबसे ज्यादा होता है। हाँ। हाँ, yes, लैम्डा ऑफ yes, रेड yes. इज 700 नैनो, 700 नैनोमीटर। No, इसका yes. होता है 400 नैनो। Awesome. तो वायलेट कलर हैज मिनिमम क्या, वेवलेंथ। अगर वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम। यस सर। एज पर कॉचीज फॉर्मूला म्यू और लैम्डा इनवर्सली वेरी कर रहे हैं ना, क्योंकि लैम्डा अगर मिनिमम होगा तो म्यू ऑटोमेटिकली मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। किसके लिए? ग्लास के लिए। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भेदभाव करता है, अलग अलग रंगों को अलग अलग महसूस करवाता है अपना प्रेजेंस। तो जो ग्लास है वो सबसे ज़्यादा डेंस फील होगा वायलेट को। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने डिविएशन का, डिविएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने फॉर थिन प्रिज्म। क्या होता है डिविएशन का फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म? डेल्टा इज इक्वल 2i minus a. ना ना ना, Delta नहीं minus. डिविएशन नहीं। नहीं, डिविएशन। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। हाँ। ये किया है कभी? हाँ सर, सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए Yes. होता है। थिन प्रिज्म के लिए, और हमारे सिलेबस में मोस्टली थिन प्रिज्म ही है।
अनलेस अंटिल आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री वाली प्रिज्म दे दें तो वो एक अलग वैरायटी है। थिन प्रिज्म के लिए आप ये लगा सकते हैं बड़ी कन्वीनियंटली। तो हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा और म्यू में कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है, लीनियर कहते हैं इसको, हाँ, ऑलरेडी लीनियर। क्योंकि y = mx + c है ना ये। यस यस। तो डेल्टा लीनियरली डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो डेल्टा भी मैक्सिमम होगा ना। यस सर। किसके लिए? ग्लास के लिए। वायलेट लाइट के लिए। यानी कि डेल्टा। वायलेट रंग की जो लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड करेगी, सबसे ज्यादा डिविएट करेगी। यस सर। So thus violet light suffers maximum deviation when it passes through the prism. और इसी वजह से वो आपको बिल्कुल स्पेक्ट्रम में बॉटम पे अपीयर होती है। सर, तो जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए भी डेविएशन ज़्यादा होगी किसी भी लाइट की। जिस मटेरियल का म्यू ज़्यादा होगा, जैसे ग्लास का 1.5 होता है, मतलब इससे ज़्यादा किसी का होगा, किसी और मटेरियल का। ग्लास उसके के लिए जो हम बोलते हैं ना 1.5 वो एक एवरेज वैल्यू है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग कलर्स के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो रहा है वायलेट के लिए, और क्योंकि डेल्टा म्यू पे लीनियरली डिपेंड करता है तो जो डिविएशन फील होगा वायलेट कलर को वो सबसे ज़्यादा फील होगा। हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डायग्राम बना के देखते हैं इसको, सो दिस इज द ग्लास प्रिज्म एंड दिस इज आवर, व्हिच लाइट इज दिस? दिस इज वाइट लाइट, दिस इज वाइट लाइट। एंड वाइट लाइट जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी तो ये जो ग्लास है, इस ग्लास को पता है कि वाइट लाइट के अंदर विबग्योर होता है, तो विबग्योर के अंदर ये सबके साथ करेगा अलग अलग बिहेवियर, क्योंकि म्यू और लैम्डा आपस में इन्वर्सली वेरी करते हैं। तो इसको जाना था वहाँ और ये हो जाएगा डिविएट। तो बेसिकली ये खुल जाएगा पूरा का पूरा बैंड 7 रंगों में। तो ये हो जाएगा वायलेट और ये हो जाएगा रेड, और फिर इस तरीके से मुड़ेगा फर्दर इस तरीके से, और एक स्क्रीन पे आप इसको ले लोगे तो यू विल गेट विबग्योर लाइक दिस। तो हमें हमेशा वायलेट मिलता है एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है? यस सर। Yes. फाइन, तो हम चलते हैं आगे। सो दिस इज डन। 18th किस चैप्टर से? ये ड्यूअल नेचर। डुअल नेचर। हमें ग्राफ बनाना है, क्या वर्सेस क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? V0। V0 V0 वर्सेस न्यू। न्यू। ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ये वाला ग्राफ? यूजिंग कौन सी इक्वेशन? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यस सर। सो व्हाट इज द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसमें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अपीयर हो जाए? करंट एनर्जी। E max equal to E V naught. ना 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 ना, नहीं वो नहीं, वो तो नहीं। भाई एनर्जी डाली h न्यू, कुछ चली गई वर्क फंक्शन में और बाकी चली गई E K V0। स्केल में। E V0 यही हाँ मैक्स है तो E V0 होता है। yes. तो E V0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस phi नॉट। तो V0 इज इक्वल टू h अपॉन E इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस phi नॉट phi अपॉन naught upon E y इज इक्वल टू mx plus Max plus C. mx प्लस c। तो बताओ m कितना है? h upon E h अपॉन e और c minus phi naught by E Minus 500. व्हाट इज phi नॉट? work function of the metal। फंक्शन ऑफ मेटल। द फॉर्मूला ऑफ phi नॉट? h न्यू नॉट। h nu naught h न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट? threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो किस पे डिपेंड करती है? फॉर द मेटल। मेटल करता है डिक्टेट कि किस पे इलेक्ट्रॉन भरा पाएगा। हाँ यस सर। मेटल ही करता है डिक्टेट कि किस पे इलेक्ट्रॉन भरा पाएगा। सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से वाले मेटल में होता है? याद है? सीजियम। यस सर। सीजियम सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव मेटल है पूरी टेबल में। ओके, हमें क्या क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ऑफ V0 versus nu। तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या लेंगे? V0 V0
एंड एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। ग्राफ की शेप क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन यस सर। पासिंग थ्रू ओरिजिन? नहीं, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आ रही है प्रॉपर। सो दिस हाँ, इज वो द नीचे एक्सटेंड करती है ना -5 हाँ नॉट पे। डैश्ड करना है यहाँ पर। और ये दो लाइंस बना लो क्योंकि यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फॉर टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शंस W1 एंड W2, हम लोग यूज करते हैं फाई नॉट, ये यूज कर रहे हैं W1 W2, दैट्स ओके। W1 बड़ा है W2 से। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल बनाएंगे क्योंकि दोनों का स्लोप क्या आएगा? h/e। यस सर। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि अगर दो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस, तो उनका अगर स्लोप सेम है तो दे आर पैरेलल। तो इस तरीके से आप लोग इसको ड्रॉ कर लेना। दोनों का स्लोप कितना कितना है? h/e। h/e। एंड इस वाले ग्राफ में व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट। अब यहाँ पर बात ये है कि हमारे पास कितने मेटल्स हैं? दो मेटल्स हैं। यस सर। हमारे पास दो मेटल्स हैं, दो मटेरियल्स हैं, दो मेटल्स हैं हैविंग वर्क फंक्शंस W1 एंड W2। W1 बड़ा है, W2 छोटा है। तो अगर W1 बड़ा है तो W1 ग्रेटर देन W2 है। W1 का फॉर्मूला क्या होगा? H न्यू नॉट 1। यस सर। और इसका h न्यू नॉट 2। नॉट 2। तो हम देख पा रहे हैं कि H से H कट जाएगा तो न्यू नॉट 1 बड़ा होगा न्यू नॉट 2 से। न्यू नॉट 2 से। बेसिकली यहाँ पर कौन सा वाला बड़ा है? जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ओरिजिन से बढ़ती जाएगी वैल्यू, यस फ्रीक्वेंसी के पीछे बड़ा होगा, ये छोटा होगा। हाँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्क कर लेना कि ये है मतलब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का W1/e, ये हो जाएगा माइनस का W2/e। 2/e। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। Yes. ठीक है, वैसे हमने ऊपर लिखा था ना माइनस का फाई नॉट अपॉन ई, बट क्योंकि क्वेश्चन में फाई नॉट यूज़ नहीं किया, W यूज़ किया है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं, यहाँ पे 2 मार्क कर देते हैं, तो गलत मार्क हो जाता है वो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गया ग्राफ, और ओरिजिन मार्क कर देना 0। और यूनिट्स मार्क कर लेते हैं। वी नॉट का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। यस सर। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस डिपेंड? देखो, कीप एन आई ऑन दीज वर्ड्स। क्लियरली बता रखा है कि लाइन बनानी है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस। तो कहीं आप कुछ और बना के आ जाओ एग्जामिनेशन प्रेशर में। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस, तो लाइन ही बनेगी, वो तो क्लियर है। ऊपर से ये वाला ग्राफ हमने 10 बार बना लिया है। तो स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है और इंटरसेप्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? तो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लोप की वैल्यू क्या है? h/e। h/e कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, इजंट इट? तो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। Yes, sir. लिखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, फुल स्टॉप। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था? इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस। अब इंटरसेप्ट तो दो हैं यहाँ पर, एक है प्रॉपर इंटरसेप्ट, एक है जबरदस्ती वाली इंटरसेप्ट। तो दोनों का बात करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे अगर हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट की, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और किस पे डिपेंड करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मेटल पे। मेटल पे। यस सर। मेटल करता है डिक्टेट, विच डिपेंड्स ऑन दी मेटल। और वाई इंटरसेप्ट क्या है? वर्क फंक्शन अपॉन फंक्शन ऑफ द मेटल। नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन अपॉन ई। और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे। मेटल पे। तो बेसिकली विच डिपेंड्स ऑन, विच अगेन डिपेंड्स ऑन मेटल। द मेटल। लिख लिया? यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 किस चैप्टर से है? 2 चैप्टर 2 से। इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। चार्ज कर लिया हमने उसको बैटरी लगा के। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इट्स थिकनेस Inserted. प्लेट सेपरेशन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये एक्टिविटी हमने हजारों बार कर रखी है। यस तो बेसिकली इस प्रोसेस में कैपेसिटर क्या नहीं भूलता? चार्ज। चार्ज नहीं भूलता अपना। तो बोल रहा है हाउ विल द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी बी अफेक्टेड।
कैपेसिटेंस का क्या होगा? K बढ़ेगा times घटेगा? हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? K K टाइम्स। K times, हाँ. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? Q equal to CV. क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? चार्ज कांस्टेंट रहेगा. चार्ज कांस्टेंट रहेगा. व्हाट इज द बेसिक गवर्निंग पोटेंशियल कम होना चाहिए. Q is equals to CV. Q इज इक्वल टू CV. अगर हम बोल रहे हैं कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज. कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो बढ़ वोल्टेज रहा है. घटना बढ़ेगा तभी तो कांस्टेंट आ घटना. पाएगा. Yes. और एनर्जी का Q फॉर्मूला क्या square होता by है? 2C. Q स्क्वायर अपॉन 2C. अब C हाँ तो square, डिक्रीज चार्ज करेगा. कांस्टेंट है हाँ. और C C बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो Q डिक्रीज होगा. निकलेगा. तो लिख लेते हैं इसको. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिखाना पड़ेगा तो लिख ही लेते हैं. नंबर 19 में तो इनिशियली क्या था सिचुएशन कि हमने उसको चार्ज किया. सो दिस इज द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमने लगा दिया यहाँ पे बैटरी. उसके बाद हमने क्या किया? फाइनली हमने क्या किया? हमने बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट एंड देन हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है. कैपिटल के मान लेते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के. सो दिस इज द सिचुएशन. और यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q, यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q एंड द वैल्यू ऑफ Q वुड बी CV. एंड दिस विल रिटेन इट्स चार्ज, राइट? तो चार्ज प्लस Q माइनस Q लिखेंगे यहाँ पर. अब बात करते हैं पहले वाले पार्ट की, कैपेसिटेंस की. तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा के C डैश रहेगा KC. कैपेसिटेंस में लिखेंगे कि इट इंक्रीजेस टू K टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू. It increases to K times its initial value. What about potential difference? डिक्रीज. Q is equal to CV. Q is equal to CV लगा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे Q is equal to C dash V dash. V dash. अब Yes. Q कितना था? Q था CV. तो CV is equal to C dash कितना है? KC. CV. तो V dash कितना आ जाएगा? V by K. By K. तो लिखेंगे कि it decreases या increases? Decreases by K times. By 1 upon हाँ. K. तो it decreases to 1 upon K The times initial value. थर्ड पार्ट क्या था? एनर्जी. energy. एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? Q स्क्वायर Q अपॉन. square by square 2C. by 2. तो U डैश इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C डैश. Yes, sir. C डैश कितना है? KC dash. 1 अपॉन K को बाहर निकाल लेते हैं तो Q स्क्वायर अपॉन 2C इज आवर ओरिजिनल एनर्जी. U. तो U नॉट अपॉन K या U अपॉन K व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, या U ही कह लो क्योंकि आपने कहीं पर भी नॉट तो लगाया नहीं है. सो बेसिकली डिक्रीज की इंक्रीज? Decrease. डिक्रीज. सो इट डिक्रीजेस टू. ये एनर्जी डिक्रीज कैसे हो गई? गायब कहाँ हो गई एनर्जी? सर उसको भी क्रॉस करना है ना. किसको? So डाइलेक्ट्रिक को electromagnetic. क्रॉस करना है ना? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग में चली गई एनर्जी, उनकी उन डाइपोल्स की अलाइनमेंट में बर्बाद हो गई एनर्जी. सर हीट के फॉर्म में नहीं निकलती एनर्जी. हीट की फॉर्म में नहीं है यहाँ पे एनर्जी. अच्छा. यहाँ पे जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसका रीजन हम ये बोलेंगे कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक घुसाया है हमने, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं उनके रैंडम मोशन में एनर्जी खराब हुई है. So this is about question number 19. Question number 20 कर लेते हैं. What is the principle of a potentiometer? What is the formula? VAJ is equal to KX. हाँ सर. Yes, sir. Write the principle of working of a potentiometer. तो potentiometer का principle. How do we start it? For a constant current Constant current. flowing through a potentiometer wire of uniform cross sectional area. Not flowing through.
क्या लिखेंगे आगे? The potential drop is directly Cross The any potential drop portion. across to the Cross across any cross portion of the wire. section. हाँ, cross any portion of the is directly proportional to the to that length. That portion of the wire. Perfect. ये कांस्टेंट करंट कहाँ से आता है? ड्राइवर सेल से. ड्राइवर सेल से. करेक्ट. प्रिंसिपल वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना क्या? पोटेंशियोमीटर का. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? प्रिंसिपल. हाँ, तो वही पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. बेसिकली प्रिंसिपल इसका हिंदी में बताएंगे तो यही है कि एक ऐसी वायर तैयार करना जिसके ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप हो. ओके सर. पोटेंशियोमीटर का मीनिंग ये है कि एक ऐसी वायर को तैयार करना जिस वायर के ऊपर अगर हम ए से बी ट्रैवल करेंगे तो एक कांस्टेंट रेट से पोटेंशियल फॉल करे. दिस इज ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ ईडी and this is rheostat RH and no key, no emitter. Leave it as it is. So VAJ proportional to X. What is this J? J is the point at which we touch the wire with the jockey. क्या किसी का मैच चल रहा है क्या? पता नहीं सर. मैं यहाँ से दूसरे रूम चल रहा है, मेरे वहाँ पे चल रहा है दूसरे रूम. ओके. IPL बहुत क्रिटिसिज्म गेन कर रहा है अभी कोरोना के चलते. So VAJ is equal to KX. So this is the formula where K is potential gradient. And what is the unit of K? Potential per meter. Volt per meter. Volt per meter. ठीक है. And K is equal to VAJ upon X बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? K is equal to पूरी वायर पकड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? VAB upon वायर की लेंथ LAB. So what is the formula of VAB? I into RAB. हाँ. What is the formula of resistance? Rho L by A. Rho L by A. L किसका? AB का. AB. तो कितना आ जाएगा K का एक और फॉर्मूला? I rho by A. I rho by A. Okay. So this is the principle of a potentiometer. Potentiometer का यूज क्या होता है? Determine the तीन होते हैं. Comparison of EMFs के लिए. ठीक है. Unknown सेल का EMF निकालने के लिए और रेशियो ऑफ EMF निकालने के लिए. ठीक है. तो पहला जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए. जो काम और कौन करता है? वोल्ट मीटर. बट वोल्ट उसमें मीटर से अच्छा है ये. हाँ. इसका नाम है कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स. और तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ये सबसे इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि और बहुत कम ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं, सस्ती मशीन्स, जो कि ये काम करके देती हैं. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना. हम जानते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. किस वजह से होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस? सेल क्या होता है? सेल के अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइट. हाँ सर. और उसमें इलेक्ट्रोड्स जो भी होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोड्स का एरिया. दिस इज द रीजन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ सेल. सो ये निकालने में हेल्प करता है पोटेंशियोमीटर. ओके. क्या बोला? डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में का जो सर्किट डायग्राम है पोटेंशियोमीटर वाला, let us draw that. Let us write the few equations to find the formula of internal resistance of cell.
ये किया है मैं क्लास में? यस सर, इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वही वाला है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, सर्किट डायग्राम। सो दिस इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर AB। वायर किस चीज की बनी होती है? कॉन्स्टेंटन और Constant या value? मैंगनीज कॉन्स्टेंटन। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है रियोस्टैट, एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे वो सेल है जिसका आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और इसके पैरेलल में आप लगाओगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर लगाएंगे एक की। इस की को या तो क्लोज करेंगे या फिर ओपन करेंगे। सो दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज जॉकी। So this is the circuit diagram to measure small r. So इसमें हम दो केस बनाते हैं। So केस 1 में ये जो की है नीचे वाली, इसको बोलते हैं की के। तो केस 1 में की को ओपन रहने देते हैं, तो की के इज लेफ्ट ओपन। इफ द की के इज लेफ्ट ओपन, तो क्या रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में है? नो, नहीं है, बिल्कुल। तो सिचुएशन कैसे दिखेगी? सिचुएशन ऐसे दिखेगी, बना लो छोटा सा डायग्राम। ये वायर नीचे का वायर है। और ये हमारे पास ड्राइवर, और ये है RH तरीके से, और हम क्या ढूंढेंगे? नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो इस तरीके से आपका सर्किट दिखेगा। मान लेते हैं कि L1 दूरी पर हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, तो लेट L1 इज इक्वल टू क्या, बैलेंसिंग लेंथ, यस सर। at which galvanometer shows null deflection. तो बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या बनेगी इक्वेशन? equal to हाँ, KL equal to KX होगा। E is equal to KL1। ठीक है, KL E is equal to KL1। लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में क्या करेंगे? सर की को इंसर्ट कर देंगे। हाँ, की को इंसर्ट कर देंगे, तो की के इज इंसर्टेड। तो इस सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज द ड्राइवर सेल ऑफ EMF ED, एंड दिस इज द रियोस्टैट। रियोस्टैट को क्या हम आगे पीछे करते रहते हैं या फिक्स कर देते हैं? इसको हम फिक्स कर देते हैं, इसको आगे पीछे नहीं करते। दिस इज द सेल, एंड मान लेते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके अंदर कैपिटल R रेजिस्टेंस हमने अवेलेबल करवा रखा है अभी। और क्या ढूंढेंगे? नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो लेट L2 इज इक्वल टू क्या, बैलेंसिंग लेंथ। balancing length at which बैलेंसिंग लेंथ galvanometer shows null difflection। डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल बताओ इस बार क्या चीज बैलेंस होगी? इस बार क्या चीज बैलेंस होगी? कोई बोल नहीं रहा है या मेरे को आवाज नहीं आ रही सी? आई थिंक इट इज द फर्स्ट वन। क्या लगता है इस बार क्या क्या चीज बैलेंस होगी? पहले केस में तो EMF बैलेंस हुआ था ना सेल का, Yes, sir. इस बार क्या बैलेंस होगा? ये balance. हाँ, ये में फिर होती है बैलेंस। नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पहले केस में EMF बैलेंस हो चुका है, इस केस में क्या चीज बैलेंस होगी? वी। V। इस सेल का TPD बैलेंस होगा। यस सर। तो Yes.
ये जो 2 पॉइंट्स है इनके अक्रॉस जो TPD है वो बैलेंस होगा, तो V इज इक्वल टू KL। KL तो आप यहाँ पे नोट लिख लेना कि केस 2 में द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यस ऑफ सेल गेट्स बैलेंस्ड। बताओ इस वाली सिचुएशन में ये जो हमारा सेल है नीचे जो लगा हुआ है ये वाला सेल, ये कौन सी Yes. स्टेट में है? डिस्चार्जिंग हाँ, the terminal potential of cell gets balanced as it is in the discharging state. E minus IR. हाँ, अब दोनों दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो इफ वी डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन बाय द सेकंड इक्वेशन व्हाट डू वी गेट? E upon V is equals to L1 upon L2. यस, सो E अपॉन V आ गया L1 अपॉन L2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्मॉल r. स्मॉल r निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल r? E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। Yes sir. ये हमने Yes, एक sir. स्टैंड अलोन डेरिवेशन कर रखा है ना, Yes, sir. तो Yes. what is this capital R? It is the resistance that we have made available in the resistance box. So R कितना आ जाएगा? L1 upon Yes, L2 minus yes. 1 capital R। Yes sir. यहाँ पर एक और नोट डाल लेना, L1 कब आया था? जब रेसिस्टेंस बॉक्स था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था. नहीं था। और L2 आया था रेसिस्टेंस बॉक्स की प्रेजेंस में। तो L1 है कि बैलेंसिंग लेंथ इन एब्सेंस ऑफ क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स। Resistance. रेसिस्टेंस बॉक्स। और L2 है बैलेंसिंग लेंथ इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। और कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? L1 हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होगा. जो आप एब्सेंस में नापोगे वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले E मेजर बैलेंस हो रहा था, बाद में V मेजर हो रहा है, जो कि E माइनस आई डैश इंटू R है, तो एक डिक्रीज क्वांटिटी बैलेंस हो रही है ना बाद में, इस वजह से। यस। तो यहाँ पर हमेशा जो है जो आपकी रेजिस्टेंस बॉक्स के एब्सेंस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बैलेंसिंग लेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। सो कितने क्वेश्चंस हो गए? 20। 20. चलो एक और कर लेते हैं। 21 में क्या बोला है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ प्लेनर स्क्वायर लूप ऑफ साइड L कैरिंग अ स्टेडी करंट I इन वेक्टर फॉर्म। ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको स्क्वायर लूप, इसका लिखना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है फॉर्मूला? BI and A sin theta. है? अरे मैग्नेटिक मोमेंट का M फॉर्मूला वेक्टर ना अच्छा। IA. IA। अच्छा हाँ ठीक है ठीक इसमें है। नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 मानेंगे क्योंकि गिवन तो कुछ है नहीं। Yes, क्या हो sir. जाएगा? IA। अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाथ घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, कहाँ पे जा रहा है अंगूठा? अगर आप इसमें हाथ घुमाओगे, राइट हैंड घुमाओगे, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? तो ये मैग्नेटिक फिगर ऐसे क्यों बना रखी है? ये ऐसे क्या बना रखी है? इससे सिंपल क्या बनाएंगे? अरे अगर वो स्टिल्ट है. ये जो यहाँ पे फिगर बनी हुई है इस तरीके से, दिस इज अ प्लेनर लूप, इसमें करंट क्या है? क्लॉक या एंटी? क्लॉक क्लॉकवाइज करंट है। तो M वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू एरिया वेक्टर। इसकी साइड लेंथ कितनी है? L। एल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा L, ये दिख रहा है यहाँ पे देखो साइड में। तो ये एक स्क्वायर लूप है, तो क्या होता है स्क्वायर का एरिया? एल स्क्वायर। हाँ, साइड स्क्वायर, तो देखा L स्क्वायर। अब M एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में आपको हाथ घुमाना है, अपना राइट हैंड घुमाना है करंट की डायरेक्शन में। कहाँ पे आ रही है? माइनस के है। माइनस के। क्या? माइनस ठीक है. Minus K. सिंपल है बिल्कुल। ये इसके वो क्या होती है ऐसा यूनिट? एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा स्पेस मार के लिखना जिससे कि कंफ्यूजन ना हो जाए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, लिख लिया? यस। ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर
दिस लूप इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट कितना है I1। ये इमेज एक्चुअली ब्लर्ड है, बस थोड़ा गेस वर्क से हो रहा है। दिस इज I1 एट अ डिस्टेंस L। तो ये जो हमारी वायर है ये L डिस्टेंस पर है इस लूप से। गिव रीजंस टू एक्सप्लेन दैट द लूप विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स बट नो टॉर्क। टॉर्क नहीं आता कभी भी, यहाँ पर सिर्फ फोर्स आती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इन दिस चैप्टर? M क्रॉस B। M क्रॉस B। M किसका? सर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। M किसका? लूप का। हाँ यस सर। और B किसकी? स्ट्रेट वायर की। वायर अपने फंडे बिल्कुल क्लियर रखो। वायर कि के करंट की वजह से। हाँ, ये जो वाली वायर है। सो बेसिकली यहाँ पर ये दूरी है छोटा l के बराबर और ये दूरी भी है छोटे l के बराबर। इसको बोल दो ABC। टॉप एंड बॉटम कैंसिल, फोर्स हो जाती है, फोर्स कैंसिल। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली यहाँ पर पहले बात करते हैं टॉर्क की। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? m वेक्टर क्रॉस MB sin थीटा। हाँ क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, या फिर mb sin थीटा, करेक्ट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर? माइनस k कैप। अभी तो निकाला था। दिस डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इज माइनस k कैप। और ये b किसकी है? स्ट्रेट वायर स्ट्रेट वायर की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी स्ट्रेट वायर की वजह से? माइनस के माइनस के कैप। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है ना कि यहाँ पर क्रॉसेस बिछे हुए हैं, है ना? यस सर। तो ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी माइनस के कैप ही है। तो कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो टॉर्क हो जाएगा m की वैल्यू b की वैल्यू छोड़ दो, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 0। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि द लूप विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क। thus the loop will not experience any torque। तो क्या ये रोटेट करेगा? नो सर ट्रांसलेट ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। बात करते हैं फोर्स की। फोर्स ऑन द लूप। फोर्स ऑन द लूप। तो ये बताओ कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट कैसे करंट्स हैं? लाइक एंड लाइक। लाइक ये करंट्स लाइक करंट्स हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है? लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट। करते हैं। तो लिखेंगे कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट। ये कौन से चैप्टर की बात है? चैप्टर 4। चैप्टर चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड अनलाइक करंट्स रिपेल। और ये जो टॉपिक है इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इस टॉपिक में? म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi r। वेरी गुड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi r। सो अगर हम बात करते हैं, जो हमारा डायग्राम है इस तरीके से, ये है I1, ये है हमारे पास लूप। तो इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स की बात नहीं करनी? ए बी और सी डी की नहीं। हाँ, ए बी और सी डी की बात नहीं करनी, सिर्फ बात करनी है ए डी की और बी सी की। अब बताओ कि यहाँ पे क्या चीज़ फिक्स्ड है? यहाँ पर ये वायर जो है ये फिक्स मानी जाएगी, दिस वायर इज फिक्स्ड। तो बताओ ये ए डी को पास बुलाएगी या दूर भगाएगी? पास बुलाएगी। तो ये हो जाएगा एफ ए डी वेक्टर। और बी सी को दूर भगाएगी, तो हो जाएगा एफ बी सी वेक्टर। कौन बड़ा होगा? एफ ए डी बड़ा होगा। क्यों? वो पास में है, क्योंकि वो पास में है। डिस्टेंस कम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपके पास L के बराबर और ये डिस्टेंस कितना है? 12। ठीक है। और ये आपका जो स्क्वायर रूट है इसका लेंथ L के बराबर है। फाइन। तो यहाँ पे F नेट कितना आएगा? क्या माइनस क्या? एफ ए डी माइनस एफ बी सी। एफ ए डी माइनस एफ बी सी। डायरेक्शन क्या आएगी? ठीक है, ठीक है। हाँ क्योंकि एफ ए डी कर रहा है ना डोमिनेट, एफ ए डी तो जे कैप में जा रहा है, इस वजह से जे कैप। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ ए डी? म्यू नॉट I1 I2, यानी कि I1 इंटू आई इंटू लेंथ। लेंथ किसकी? ए डी की लेंथ L अपॉन क्या? 2 पाई L, क्योंकि जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो L है, माइनस नॉट I1 I इंटू L अपॉन 2L 2 पाई 2L। 2L जे कैप। कॉमन क्या आ रहा है?
mu naught mu naught I1 I1 I L upon 2 pi L. pi l ब्रैकेट में जाएगा 1 minus half Yes sir, which is minus half half. हो जाएगा mu naught I1 IL upon 4 pi l Yes sir. हो जाएगा 4 pi l तो l से कट जाएगा so this is so the answer is going to be f net is equal to mu naught I1 I upon by 4 by j cap. What is the unit of force? Newton. 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 So यहाँ पे लिख देना Newton. So this is the force experienced by the square loop. Yes sir. Yes. ठीक है. तो कैसा लग रहा है 2010 का पेपर? Yes. Easy. Easy है. Easy है. Yes. Sir. ठीक है. मैंने 2010 में दिया था वैसे बोर्ड का पेपर. तो ये इसी वजह से पूछ लिया. चलो फिर आज हम इतने करते हैं बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे. Okay, sir. Okay, sir. Okay guys. See ya. Thank you, sir.